تو کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ وظیفہ نہ پڑھنا شروع کر دوں میں. ابھی میں اس وظیفے کو تھوڑی دیر پڑھا ہی تھا تو بجلی چمکی بہت سخت اور گڑگڑاہٹ کہ بس ابھی بارش ٹوٹ پڑے گی. اور میں نے اس سے کہا کہ کنڈکٹر سے, میں نے کہا میرا اوپر سامان پڑا ہے, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ترپال. اس نے کہا یہ کوئی ہمارے پاس ترپال کہاں سے آئی, کہاں سے کوئی چیز آئی؟ اس نے بڑی برے طریقے سے مجھے جھٹک دیا. پریشان ہوں, بس مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی. وہ جو استاد کلاس کو ٹاپ اور ٹاپر اور کامیابیوں کے لیے جو وظیفہ پڑھاتے تھے, میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا درد سے. مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے, جس کی ساری عید اوپر پڑی ہو اور سخت بارش اور ہر چیز ننگی اور چیزیں بھی ایسی کہ اگر مہندی پہ بارش ہو جائے پانی, اور وہ دانتن مسواک مساک اگر اس پہ بارش ہو جائے وہ ایسے جیسے کہ کسی چمڑا اور چیچڑا ختم, ہر چیز ختم, اور اس کو سوکھتے سوکھتے مہینہ لگتا اور اس وقت تک عید کی کہانی ختم. تو سوچیں اس نے وظیفہ پڑھا ہوگا یا مانگا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. ہمارے ایک بابا جی تھے کہتے تھے یہ تسبیح پڑھ بیٹھ کے, کہنے لگے ایسے بیٹھے تسبیح پڑھ کے, اوے مڑ مڑ سے کچھ نہیں ہونا, مڑ مڑ کرتا ہے تو مڑ مڑ کرتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا بابا جی کیسے ہوگا؟ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے ایسے مارتے تھے, اوے یہاں سے ہوگا. بابا تھا ان پڑھ پر اللہ کے یقین والا تھا, ایسے سینے پہ ہاتھ مار میں کہتا ہے یہاں سے ہوگا, تیری مڑ مڑ سے نہیں ہوگا. اس نے وظیفہ کس انداز سے پڑھا ہوگا؟ کہنے لگا بس میں نے وہ وظیفہ پڑھا. جب وظیفہ پڑھا نا, اچانک یہ ہوا بارش بس کا ایک ٹائر ٹھس ایسے ہوا. اس نے کہ جی وہ ٹائر ختم ہو گیا. میں کہ مولا پہلی مدد تو آنکھوں سے دیکھ لی. اب وہ پیٹرول پمپ کوئی تلاش کر رہے تھے تو سامنے پیٹرول پمپ آیا, اس کا بڑا سارا شیڈ تھا, یوں بس نیچے گئی نے تو ٹھا ٹھا کر کے بارش اوپر سے آئی. وہ پھر بھی بس چلاتا پر وہ ٹائر ہی ختم ہو گیا. غیبی نظام چلا, غیبی نظام بنا. اسے کہتے ہیں اللہ غیب سے مسبب الاسباب ہے, غیب سے نظام بناتا ہے اور ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان, خیال, تصور, احساس تک نہ ہو. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سرائے میں جاتے تھے, سرائے جہاں پردیسی ہوتے تھے, اور ان کو جا کے ہنساتے تھے. اتنا ہنساتے تھے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. وہ جاننے والے نہیں ہوتے تھے, ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے. 8-10 بندے, 20-30 بندے ہیں. میں نے ترکی میں سرائے دیکھے, میں نے بخارا میں دیکھے, سمرقند میں دیکھے, تاشکند میں دیکھے, میں نے باکو میں دیکھے سرائے. بہت میں جگہوں میں نے سرائے دیکھے. انہیں کاروان سرائے کہتے تھے. گدے گھوڑے باندھنے کی جگہ علیحدہ, اس کی علیحدہ, انسانوں کی. ہنسا کے نا گھر چلے جاتے تھے اور پھر جا کے کہتے مولا غم زدہ دلوں کو میں نے اے سخی آقا مسکراہٹ دی ہے, کیا قیامت کے دن تو مجھے مسکراتا ہوا ملے گا؟ اے سخی آقا قیامت کے دن ایسے تو مجھے مسکراتا ہوا مل. میں نے غم زدہ دلوں کو, پردیسی گھر سے دور, کہاں کتنے مہینوں کے کتنے ہفتوں کے نکلے ہوئے, میں نے غم زدہ دلوں کو مسکراہٹ دی ہے اور تیری رضا کی خاطر دی ہے. صرف ان کا کام لوگوں کو ہنسانا تھا, پردیسیوں کو, غم زدہ کو, تکلیفوں کو, مریضوں کو, دکھیاروں کو, غم کے ماروں کو صرف ہنسانا تھا. تو بات کر رہا تھا میں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر, کہ مولا میرے سارے سبب ختم ہو گئے ہیں, میری ساری راہیں ختم ہو گئی ہیں, اپنوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے, اپنوں نے منہ موڑ لیا ہے, میری ساری راہیں جدا ہو گئی ہیں, میری گلیاں بند ہو گئی ہیں, میرے راستے مسدود ہو گئے ہیں, میں تنہا ہو گیا ہوں. سخی آقا تیری بارگاہ میں تو کوئی راستہ ہوتا ہے اور ہے. سخی تو ان راہوں کا محتاج نہیں ہے, تو کوئی غیب سے راستہ بنا, اور بنا ایسا کہ جس میں میری اور میری نسلوں کے لیے خیر ہو. یا مسبب الاسباب
सब्बिब ली अल खैर, बना कोई ऐसा रास्ता जिसमें खैर ही खैर हो, जिसमें आफियत ही आफियत हो, जिसमें बरकत ही बरकत हो, जिसमें रहमत ही रहमत हो, जिसमें अता ही अता हो, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, और जिसमें कामयाबियां ही कामयाबियां हो। ये है या मुसब्बिबल अस्बाब। पर पढ़ ऐसे कि तेरा सारा तरका, तेरी सारी दुकान बस पे पड़ी है, बारिश बनी हुई है, कंडक्टर सुनता नहीं है, और तूने वहां से अपना सामान घर खैर से पहुंचाना है, दुकान पे सजाना है, चारा ने उससे कमा के बच्चों पे खर्च करना है, और बारिश से बच जाए, उस वक्त तेरी हालत क्या होगी? हालत बताएं जरा, हालत, कैफियत बताएं। अल्फाज से निकल के कैफियत में आना है, अल्फाज से निकल के अल्लाह के नाम की मोहब्बत और जज्बात पे आना है, अल्फाज से निकल के तड़प पे आना है, तलब पे आना है। ये वो आएगा जो सबसे पहले एतराज की नजर और एतराज की सोच कि तस्बीह खाने में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, एतराज की नजर, एतराज की सोच और एतराज के जज्बे से निकल के पहले अपने आप को कहेगा इन सब की मेहरबानी है, मुझे यहां रखा हुआ है, मैं इस काबिल कहां था। एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, ये उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी। अल्फाज को कैफियत और जज्बात में ढाल के दर्द और पूरे गम और पूरे जज्बे के साथ या मुसब्बिबल अस्बाब, मौला सारी राहें, सारे सबब खत्म हो गए। मैंने कहा उसकी सिफारिश करूंगा, मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है। मौला सारी सिफारिशें, सारे के सारे रास्ते ऐ सखिया का खत्म हो गए हैं, ऐ सखिया का खत्म हो गए हैं। ए मेरा मौला, मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूं, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है। अब कुछ सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का। अच्छा कहते अल्लाह कहते हैं सब छोड़ गए, जी मौला, सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। और फिर अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वही दर्द चाहिए, इसके लिए वही कैफियत चाहिए, इसके लिए वही जज्बा चाहिए, इसके लिए वही विजदान चाहिए। विजदान, कैफियत, दर्द, जज्बा, कैफियत, दर्द, जज्बा, वो विजदान चाहिए। तस्बीह खाने में आ गए, घर बार भी छोड़ आए, सबको छोड़ के तस्बीह खाने में आए और अपना तन मन धन तस्बीह खाने के हवाले कर दिया। सब कुछ हवाले करने के बाद भी यहां भी कैफियत ना मिली तो फिर कहां मिलेगी? यहां भी दर्द ना मिला तो फिर कहां मिलेगा? यहां भी अल्फाज से निकल के जज्बात और कैफियत में ना ढले फिर कहां ढलेंगे? या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। अल्लाह अकबर। बस इस कैफियत और इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी में हर वजीफा भी पढ़ना है और या मुसब्बिबल अस्बाब वाला वजीफा भी पढ़ना है, हमेशा हमेशा हमेशा। और आज भी जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला, नसीब वाला इसकी कदर करेगा, और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा, और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर और नसीबों वाला, ये वो लिखना है और इसको पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद इन पे कबूलियत की मोहर लगवानी है। क्या ख्याल है, कबूलियत की मोहर के बगैर कोई चीज कबूल है? कबूल है वो फिर दरूद पाक है। अमल से पहले यह बात, अगर दरूद नहीं पढ़ा, फरमाया तुम्हारी दुआएं आसमान और जमीन के दरमियान अटक जाती हैं। वो दरूद होता है, वो कमली वाले पे सलातो सलाम है, वो दरूद है, वो जाके उनको कबूल करवाता है। और दरूद कैसे पढ़ना है? आका के एहसानात, अम्मा के एहसान, अब्बे के एहसान, उस्ताद के एहसान, किसी मुखलिस मोहसिन के एहसान पर जो मेरे कमली वाले के एहसानात हैं वह कायनात में किसी की नहीं, मेरे हुजूर कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर, ख्याल, इस्तेहजार करते हुए दरूद पाक पढ़ना है और उस पर मोहरें लगवानी है कामयाबियों की और कबूलियत की। तो किस दर्द से पढ़ेंगे या मुसब्बिबल अस्बाब?
इनायत वाला दर्द होगा, हैं? कौन सा दर्द होगा? इनायत वाला। एक वो दर्द होगा और एक वो दर्द होगा जिसका बस के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। यूं पानी आया और मेहंदी घुल गई। और कहा जब तक के बारिश नहीं थमी, पेट्रोल पंप के शेड के नीचे रही और उस दौरान उन्होंने टायर वगैरह वो सीधा बदलते रहे। बहुत देर बारिश रही, उनका काम सीधा ही नहीं होता था। कहा मैं करिश्मा देख के मुसलसल पढ़ता रहा दिल की गहराइयों से, मौला अभी बारिश है, अभी इनका टायर ठीक ना हो, ए मुसब्बिबल या मुसब्बिबल। पढ़ता रहा अंदर के दर्द के साथ। बारिश खत्म हो गई, बारिश की नमी खत्म हो गई, टायर उसका तस्बीह खाने में आके भी हमें जज्बात ना मिले, फिर कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बताएं तो सही। लफ्जों की दुनिया के व्यापारी रहे और लफ्जों की दुनिया में चलते चलते दिल की दुनिया ही ना मिली, लफ्जों की दुनिया मिली। लफ्ज ही बाबरकत है, हम लफ्जों का इनकार नहीं करते, पर लफ्ज दिल के साथ जब मिलते हैं ना, जब दिल की तारों को हिलाते हैं, फिर अर्श हिल जाता है। हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात चलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, बस वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क़ के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं, वत्तीन इंजीर वज़्ज़ैतून। हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क़ पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़्ज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क़ की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम दिनार, रिज़्क़ माल, रिज़्क़ तैयब, इज्जत आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क़ के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, दूसरी उंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़्ज़ैतून दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं।
اور تصور کریں کہ آپ کا کشکول آپ کی جھولی بھر گئی، اور 11 بار پڑھیں والتین والزیتون۔ اب دایاں ہاتھ بائیں کندھے پہ، بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ، صرف پھیر دیں، صرف پھیر دیں، پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں۔ اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر۔ اللہ کی قسمیں ہیں، اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے، اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔